ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So happy to meet all of you. Prabhuji is mentioning this topic, the dare to share bhakti everywhere. Can we share something that which we don't ourselves have? So the first thing that comes out of this topic is that anything we want to share with others, we should have it ourselves. So we'll discuss a little bit about how we can have bhakti and what does it mean to have bhakti. Actually, anything to do good in this world, you need enthusiasm. If you're not enthusiastic, you cannot achieve anything. Material success, spiritual success, all is based on enthusiasm. Srila Rupa Goswami is mentioning 6 things which are important for progress of bhakti. What is the first one? Utsahat. Then comes Nishchayat. Then comes Dhairyat. But first thing is Utsaha. So always, preacher means enthusiastic. If we are not enthusiastic, it does not mean that it does not mean we don't have energy. You know what it means? It means we lack Shraddha. Actually, enthusiasm is a symptom of Shraddha. How much facilities did Prabhupada have when he went to the West? In fact, everything was against him. What to speak of having facilities? Everything is against him. His age is against him. The culture of America was against him. The financial situation was against him. Some disciples of Prabhupada, they had come to the temple and they were mentioning, when we were young in America, part of the hippie culture, then there was a mantra, do not believe anybody who is above 30 years in age. And Prabhupada's age was 69. So he was more than double. But why did people put so much trust in Prabhupada? Because they saw Prabhupada was very enthusiastic. And sometimes these young boys, they could not match Prabhupada's enthusiasm. So enthusiasm comes from Shraddha. Enthusiasm is not coming from some energy drink. There are some energy drinks available and then you think that I'll become enthusiastic by that. That's very much on the bodily platform. Actually, real enthusiasm will come from Shraddha. Prabhupada's own wife did not support him. Prabhupada's own god brothers did not support him. But he had Shraddha. One time somebody asked Prabhupada, what is the secret of your success? Prabhupada said 2 things. One is, I had deep faith in the power of the holy name. If anybody chants the holy name, transformation has to occur. It is only a question of time. But nobody can escape the power of the holy name. Second thing he says, I had faith in the instruction of my spiritual master. My spiritual master said, you go and preach in the West. I have to go and preach in the West.
His Holiness Giriraj Maharaj, he mentioned one incident that Prabhupada called him when Prabhupada had given him an instruction that after the Cross Maidan Festival, 1971, they organized a Cross Maidan Festival at Bombay, very successful. In that program, His Holiness Radhanath Maharaj met Srila Prabhupada, His Holiness Loknath Maharaj met Srila Prabhupada. So it was a very huge, first time a huge festival happened in India. Around 20,000 people would come every day. So huge opportunity. There's a ground called Cross Maidan, that festival. So in that Cross Maidan festival, there was a lot of need for funds. And Giriraj Maharaj that time, he was brahmachari, he was taking care of the Bombay temple, Juhu temple, and he was told that you collect funds. But before the Cross Maidan festival, Prabhupada had told him, he is one of those devotees who are little introvert, shy, that type. He's not a very extrovert devotee. So Prabhupada had told him, you should write books. And then he thought of sitting down in one place and writing a book. He wanted to prepare himself for writing a book. But the Cross Maidan festival came, and the managers of that Cross Maidan festival was Sham Sundar Prabhu and His Holiness Tamal Krishna Maharaj. So both of them said, Giriraj Maharaj, you are a person who stays in Bombay. You know so many rich people in Bombay because you have been preaching in Bombay. They were not from Bombay, they came from America for organizing the festival. They were managers. So they said, you should help us go and visit all the rich people in Bombay and collect funds for this Cross Maidan festival. Prabhupada wants it. So Giriraj Maharaj said, yes, it makes sense. So Giriraj Maharaj gave up his writing project and started collecting funds. And 6 months after that program went nice, everything happened. 6 months later, Prabhupada asked him, what happened about writing the book I told you? And he mentioned it, Prabhupada, I wanted to write, I thought of something, but then Cross Maidan festival came and they told me that I can please you by collecting funds for the Cross Maidan festival. So I did that. Prabhupada said, okay, but now at least you should start writing books. So again he thought of starting to write books. Again some managerial assignment came to him, but he is somebody who will surrender. So again he surrendered his mood and he did something else. Second time Prabhupada asked him, what happened about that writing book? And he mentioned, Prabhupada, actually I wanted to write, but then they told me to do this seva, so I could not write, but I will write. Then Prabhupada told him, you can postpone the order of the spiritual master, but you cannot neglect it. And Giriraj Maharaj keeps talking about this. And Prabhupada spoke about his own story. Prabhupada said, in 1922, my Guru Maharaj told me that you should preach in the English language. And I was married at that time, I had children, and I was thinking, how is it possible to do this? So slowly in 1936, on the banks of Radhakund, again Srila Prabhupada met His Divine Grace, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. And again Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada told him, whenever you get money, print books. So this time again it came out that print books. So Prabhupada told Giriraj Maharaj his own story, how he had received almost the same instructions. In 1936, when Bhaktisiddhanta Saraswati told him, he told, if you write books, it will do good to you and it will do good to the whole world. So Prabhupada was thinking, I would think that I want some personal instruction from my Guru Maharaj. But Guru Maharaj then told me the same thing which he had told in 1922. And then Prabhupada said, I realized that was the mission of my life. And then we see in the life of Prabhupada how Prabhupada kept on insisting on writing books, right? So Prabhupada quoted this personal example to Giriraj Maharaj. So he didn't scold him that you didn't write books till now and you changed my instruction. But Prabhupada said, yes, whatever you were doing as an alternative was also for ISKCON. But you can postpone the instruction of your spiritual master, but you cannot neglect it, right? So enthusiasm sometimes we feel is equivalent to Rajogun. If you see somebody running around since morning, afternoon, evening, we think that is enthusiasm. That is just plain Rajogun. Enthusiasm is basically pinpointed energy. When you have one goal in life and you're constantly thinking about it. You're constantly, morning you're thinking about it, evening you're planning for it, next day you're executing it. So even thinking, planning, executing, it all comes in that achievement of the goal. It's not that when you're running around physically, that is enthusiasm.
So if the spiritual master has given us some goal, and if we are planning for it, if we are preparing ourselves for it, that is also enthusiasm. It's very important to know. If you see somebody who's just running around here and there, we think he's really enthusiastic, but actually it may be plain Rajogun. And what is Rajogun? Rajogun is just changing, not being fixed on something and just spending your energy. So that's why I mentioned enthusiasm is a symptom of Shraddha. When you have Shraddha in your spiritual master, when you have Shraddha in the holy name, then only you can be enthusiastic. So Prabhupada's whole movement was established on deep Shraddha in the power of the holy name and the power of the instruction of his spiritual master. And that's why he could do what nobody else has done till now. And those of us who want to be true followers of Prabhupada, we should also develop this mode, that we have to actually deepen our Shraddha, our faith in the order of Krishna, in the order of our spiritual master, and just see how things happen. When Krishna appeared in the jail of Mathura, he told Vasudeva, please take me to Gokul, Nanda Maharaj's home. And what did Vasudeva do? At that point of time, Vasudeva and Devaki were in the prison. Their hands had handcuffs. Their legs had chains. They were staying in a prison cell. There was a lock on the prison cell. And then there were many guards. Why? Because the king of the country was being threatened by the child of Devaki. That was the Akashvani. How much security must be there for the couple? Because the king is in danger. The highest danger, right? So all that security is there, and that little child Krishna is telling Vasudeva, now that I am born, please transfer me to Nanda Gokul. What did Vasudeva do? One option was Vasudeva could have told the baby, do you have eyes? Do you see what is happening around? My hands are shackled, my feet are shackled. We are inside a prison. We don't have freedom. The gates are closed. There are guards outside. But what did Vasudeva do? Vasudeva was enthusiastic. And why was he enthusiastic? Not because he took some energy drink. He was enthusiastic because he had deep Shraddha in the word of the Supreme Lord. What did he do? He picked up the child and started walking. At one particular point, when the chains were preventing him from walking, the chains opened. He didn't do anything. He was just walking. Bhagwan ne bola hai to karna hai. When he reached the door, the lock opened and the door opened. When he went outside, the guards slept. And without any impediment, he went to the river, Yamuna. And what happened at the river? The river, it parted. And he could walk. And it started raining. And when it started raining, Ananta Shesh came there to put an umbrella. All this is happening. Why? It was already supposed to happen. But what part was Vasudeva playing? Vasudeva was playing the part that if it is God's will, it is going to happen. I can only be an instrument of that. And that's why Vasudeva did not give any single smallest resistance when Krishna told him, you take me across. This same Vasudeva, on the day of the marriage, when he is happy, he is getting married to a very wonderful, chaste girl called Devaki. And right there in front of everyone, there is an Akashvani that this woman, child, is going to be the cause of your death. And what does Kamsa do? He was holding the reins with his left hand and he had a chabuk in his right hand. And he was trying to take the chariot forward. What did he do? He gave it up. With his left hand, he caught hold of the hair of Devaki. And the right hand, he took out a sword. And shamelessly in front of everyone, he is trying to kill his own sister. What did Vasudeva do? Vasudeva could have kept quiet and Vasudeva could have said, Abhi jo honi hai, wo to honi hai. But Vasudeva was enthusiastic to save his wife. What did he say? First, he told Kamsa, you are such a famous person. Everyone respects you. Everyone says you are a great, brave person. In front of everyone, if you decide to kill an unarmed girl, will that add to your glory? But when he looked at the face of Kamsa, this did not work. Kamsa said, Nirlajja hu, mujhe kuch farak nahi padta, log kya kahenge. That sword was still there. Then he said, see, life is temporary. Anyway, you will die, one day or today. But if you do in this way, you will be killed today. Your fame will be destroyed. But all of us are supposed to die. Then he said, when you
leave one body and you go to another body. It's like a worm which is crawling, and when the worm is on one leaf, then before it goes to the second leaf, it does not lift itself from the first leaf. So he gives that example. He looked at Kamsa. Kamsa's face is still not changed. He says, philosophy bolo, मेरा fame, वो सब बोलो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Then he understood this kind of a selfish person, he does not understand tattva, he does not understand philosophy. There is only one thing that will work: swartha. For a selfish person, only selfishness will work. Then he said, okay, what do you want? You want to live right? I promise you, I will hand over the 8th child to you. Okay, done. अभी तो आपका काम हो गया सब. Kamsa then felt, this person Vasudev is such a famous person. When Vasudev was born, there were kettle drums in the sky. उसको दुंदु भी बोलते हैं. दुम 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 ऐसे बजाता. इसलिए one of the names of Vasudev is आनक दुंदुभी. Why आनक दुंदुभी? देवताओं ने दुंदुभी बजाई जब वसुदेव का जन्म हुआ था. He is such a great person. He is such a truthful person. So Kamsa is looking at him and saying, he is promising me that 8th child, his child, he will give to me. But the character of Vasudev was so high that Kamsa believed it. Today if somebody says, मैं मेरा बच्चा आपको दूंगा मारने के लिए, कौन believe करेगा? But Vasudev said that and Kamsa believed it. Can you imagine the character of Vasudev? So Vasudev did not say, कौन आने वाले हैं? भगवान आने वाले हैं ना. देवताओं ने क्या बोला? भगवान आने वाले हैं कंस को मारने के लिए. तो भगवान देख लेंगे ना, भगवान अपना प्लान करेंगे. If Vasudev would have kept quiet that day, we don't know what would have happened, right? But Vasudev, see, God has a plan. God wants certain things to happen in this world, right? Prabhupada one time he was speaking to his disciples and he said, you have a plan, he has a plan, and God has a plan. Guess whose plan will happen? Right? So Prabhupada is saying like this. Disciples को बोल रहे, you have a plan, and Krishna has a plan. Guess whose plan will happen? Krishna's plan, right? So finally Krishna's plan is happening. महाभारत के युद्ध में दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा, all of them are very intelligent people and all of them had a big plan, right? What happened finally in the battle of Kurukshetra? Krishna's plan became heavy. That one peacock feather, in that the scale of justice, तराजू, न्याय के तराजू में एक तरफ 100 कौरव थे और सेनापति इच्छा मृत्यु वाले थे और उनके शिक्षक थे और एक चिरंजीव थे अश्वत्थामा. कर्ण कैनॉट बी किल्ड ऑर्डिनरीली. यहाँ पे देखेंगे तो कितना भारी है ये पलड़ा. ये जो तराजू है वो कितना पलड़ा भारी है. और इस तरफ कौन है? 5 पांडव. Their teacher is not with them. Their इच्छा मृत्यु grandfather is not with them. Nobody Chiranjeev is with them. Chiranjeev मतलब cannot be killed. Ashwatthama is Chiranjeev. He is still alive. Cannot be killed. And because the 5 Pandavas are in the forest, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास है ना, उनका अपने दोस्तों से संबंध टूट गया था. See, when you are ruling, then the kings will come to you, you will go to the kings, there will be exchange of gifts, some social functions will happen and there will be friendship. जब 12 साल आप वनवास में चले जाते हैं, बहुत गहरी दोस्ती जिसके साथ है वो गहरी टिकती है, लेकिन बाकी सब दोस्ती खत्म हो जाती है. So they had no allies. Allies means friends, people who will help them. So no financial power, पैसे है नहीं, no shastra power, they don't have any weapons because they are there, no man power, no friend power, no contacts power. Do you understand what I'm saying? No quantity power. If you see the scale of justice, the Kauravas' palda was very heavy and the 5 Pandavas' palda was very light. But something happened. The Pandavas had faith in the Lord. And that's why when Krishna said, एक तो मैं लड़ाई में भाग लूंगा, ये मेरी नारायणी सेना भाग लेगी. So Duryodhan said, यही तो बात चाहिए थी मुझे बात. Who reached Krishna's palace in Dwarka earlier? वो कथा आती है ना, दोनों पहुंचे. Who reached? Duryodhan reached. So very interesting. And that's why I was mentioning, we feel enthusiasm is equal to Rajogun. Actually Duryodhan has Rajogun. सुबह जल्दी पहुंचा, उस दिन सुबह जल्दी उठाओ.
but with what mood? To destroy the plan of Krishna. And Arjun बेचारा, उसके पास ना सगे संबंधी है ना आर्मी में कोई है, लेकिन what does he have? What is his weapon? Arjuna's weapon? Deep faith in the plan of the Lord. And he went to Krishna. He saw that Duryodhan is already there. But what did Duryodhan do? Duryodhan said, ये तो राजा है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं भी तो राजा हूं. So where should I sit? Equal है हम लोग, तो पास में बैठूंगा मैं. Right? And Arjun, even though he came late, Arjun did not feel sad, because Arjun knows Krishna is not impressed by Rajogun. Krishna is impressed by Utsaha, and Utsaha comes from deep faith inside. So Arjun बोले, ये तो मेरे दोस्त हैं, शुभ चिंतक हैं, इनके पास में नहीं बैठते, मेरा स्थान उनके चरणों के पास में. Very gladly, very happily, not in frustration, he sat at the feet of the Lord. So we know the story. I'll cut it short. Krishna's eyes opened, and he first saw Arjun. He did not see on the side. Very natural. They said, Arjun, when did you come? They said, मैं यहाँ पे बैठा हूँ. Speaking the story. So मैं यहाँ पे बैठा हूँ. हाँ तो देखे, अरे आप कब आए? मैं इसके पहले आया हूँ. ठीक है, रजोगुण है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास श्रद्धा नहीं, इनके पास श्रद्धा है, इसलिए उत्साह है इनके पास. बोलो अर्जुन क्या चाहिए? मैं पहले आया हूं, मेरा हक पहला है. देन कृष्ण सेज, सी आप बड़े हैं उम्र में, बिकॉज दुर्योधन एंड युधिष्ठिर वेर ऑफ द सेम एज, एंड ये छोटे हैं. तो हमेशा जब बड़े बुजुर्ग जब कुछ देते हैं तो छोटों को बढ़ा देते हैं, पहले देते हैं. तो बोले इसलिए मुझे इनको देना है. नहीं 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 नहीं, जो होगा वो होगा, पहले मैं आया था, मुझे मिलना चाहिए. तो देन कृष्ण अंडरस्टूड, ही डज नॉट अंडरस्टैंड जेंटलमैनली लैंग्वेज. सज्जनों की भाषा इसको समझ में नहीं आती है. तो बोले देखो सुन, मैंने पहले इसको देखा तो मैं इसको पूछूंगा, समझा? चुप. व्हाट टू डू इफ समबडी इज रियली दैट स्ट्रांग? व्हाट टू डू, राइट? चुप किया उसको, चुप हो गया. यस, तुमको क्या चाहिए? तो बोले डोंट इवन आस्क मी, मुझे पूछना भी मत. अगर आप मेरे साथ है तो मेरे पास सब कुछ है, मुझे और कुछ डिटेल्स है, उसके बाद में जो होगा वो तो डिटेल्स है. मेन चीज क्या है? आप मेरे साथ में है. तो बोलते इतना बेवकूफ अर्जुन तो पहली बार देखा. इसके पास चांस था पूरी नारायणी सेना लेने का. मांग मांग के इसने क्या मांगा? सचिन तेंदुलकर हु सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू बैट. मांग मांग के इसने क्या बोला? उस्ताद जाकिर हुसैन हु सेड आई एम नॉट गोइंग टू प्ले तबला. मांग मांग के इसने क्या बोला? हरि प्रसाद चौरसिया हु सेड आई एम नॉट गोइंग टू प्ले माय फ्लूट. What is the use of Hari Prasad Chaurasia if he says I am not going to play my flute? What is the use of Sachin Tendulkar if he says I am not going to bat? What is the use of Krishna who says I am not going to fight? But the whole life of Krishna is fighting with demons. पूतना से लेके केशी व्योमासुर तक वृंदावन में केवल हर रोज एक राक्षसी है. तो ये लड़वैया है, ये लड़ाई करने वाला है. ये बोल रहा है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और ये बेवकूफ ने उसको चुना. और देखो मैं कितना सयाना हूं. मैंने अभी हाँ अभी क्या करेंगे, अभी जो बाकी है वो ले लेता हूं. राइट? एंड दैट्स हाउ ही प्रूव्ड हिज रजोगुण एंड ही प्रूव्ड हिज श्रद्धा. एंड देन दुर्योधन तो चला गया, हो गया, काम हो गया. जो काम के लिए आए थे होते तो चले गए. कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन, हार निश्चित है तेरी. अर्जुन को बोल रहा है हार निश्चित है तेरी, तू रहेगा उदास. माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास. सही है कि नहीं? मेन चीज जो थी वो तो लेके गया. वो अभी तेरे पास कौन है? मैं बचा हूं, मैं तो लड़ने भी नहीं वाला हूं. सो व्हाट डज अर्जुन से? दास नहीं हो सकता उदास, इतना विश्वास है मेरे पास. बोलिए, दास नहीं हो सकता उदास, इतना विश्वास है मेरे पास. माखन लेकर मैं क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास? So Prabhupada asked, you have a plan, you have a plan, and Krishna has a plan. Guess whose plan will happen? Krishna's plan will happen. So what should we do? Should we give up making our plans? क्यों हमको बुद्धि दी है भगवान ने,
हमको एक इच्छा शक्ति दी है हमको भगवान ने, तो अभी वो इच्छा शक्ति का यूज करना है कि नहीं करना है, बिकॉज एनीवे कृष्णा's प्लान इज गोइंग टू हैपन. Why did Krishna give us इच्छा शक्ति if Krishna's plan is going to happen? This is the secret. The secret is we can make our plans in such a way that our plan fit into the plan of the Lord. We go to extremes. हम हमेशा एकदम एक्सट्रीम में जाते हैं. एक एक्सट्रीम क्या है, मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा, मुझे किसी की पड़ी नहीं है, मैं भगवान के प्लान में मेरा प्लान नहीं मिलाऊंगा, गुरु के प्लान में प्लान नहीं मिलाऊंगा, मैं अपना प्लान बनाऊंगा. This is one extreme. And second extreme is so-called surrendered people who say भगवान कर रहे हैं ना सब कुछ, भगवान तो पूरी सृष्टि चला रहे हैं ना, तो मैं क्या करूं, मैं तो चुप बैठूंगा. अपने आलस को they are justifying by saying anyway Krishna's plan is going to happen, so what is the need for me to do anything? And what is Krishna proving in the whole Krishna लीला? कृष्ण लीला में कृष्ण क्या बार बार साबित कर रहे हैं, मेरी इच्छा से ही जग चलेगा, लेकिन आपको मैंने इच्छा शक्ति दी है. क्यों दी है? आप अपनी इच्छाएं कीजिए, आप अपना प्लान बनाइए और मेरे प्लान में अपने प्लान को मिलाइए. That is the whole success of this human form of life. What is the success of human form of life? To make nice plans in such a way that our plans complement the plans of the Lord. They don't compete with the plans of the Lord. भगवान की योजनाओं में हमको हमारी योजनाओं को सम्मिलित करना है, उससे हमको कंपटीशन नहीं करना है. So Shishupal is also making plans, but he is making plans to compete with the Lord. And there are atheists who don't make any plans. वो अपना जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, उसको लेना देना है. What are devotees doing? Devotees are in between. Devotees make lot of plans, but they make lot of plans to ask श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या प्लान है. श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं पृथ्वी ते अछेत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम. गौर निताय का नाम होने वाला है. भक्ति विनोद ठाकुर says, I long for the day when the Russians will come and wash their feet in the warm waters of Bay of Bengal, and they will raise their hands and chant Jai Shachinandan Gaur Hari. This he wrote in 1896. In 1896, anybody knows what is the special significance of this year 1896? Something very special happened. Bhakti Vinod Thakur wrote in that book and sent it to McGill University in Canada. In 1896 he expressed a desire. मेरी इच्छा है कि कब जर्मन और रशियन लोग जो बर्फ में रहते हैं वो बे ऑफ बंगाल के गर्म पानी में आएंगे, अपने पैर धोएंगे और बोलेंगे जय सच्चिदानंद गौर हरि. और जिस साल में उन्होंने वो इच्छा व्यक्त की, उस साल में भगवान ने उनके प्लान में भक्ति विनोद ठाकुर की ये इच्छा को, भक्ति विनोद he is making a desire. I want that Russians and Germans should come. It is his desire. But what is his desire? His desire is to mix his plan in the plan of Shri Chaitanya Mahaprabhu. That's why that plan will work. भगवान की इच्छाओं के अनुसार अगर हमारी इच्छाएं रहेंगी तो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी. भक्ति विनोद ठाकुर's desire worked. Bhakti Vinod Thakur said, I want to preach. I want somebody to assist me. He got a ray of Vishnu, right? Bimal Prasad. Who is Bimal Prasad? Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. He appeared in this world. He was kept in front of Jagannath ji. The garland of Jagannath on the Rath fell down on the child. That was confirmation that this is a great child. So Bhakti Vinod Thakur is making plans. मुझे ऐसा कोई बेटा मिले जो मुझे प्रचार कार्य में मदद करे. मिल गया. उन्होंने इच्छा भी थी. एक दिन कब आएगा जब रशियन और जर्मन लोग यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के पानी में हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे और बोलेंगे जय श्री चलो. वो हुआ. क्यों हुआ? His plans are not competing with the plans of the Lord. His plans are complementing the plans of the Lord. So all of us need to make big plans. हमको ये जो बुद्धि दी है उसको हमको यूज करना है. We have to make big plans. But what kind of plans? So that our plans are small parts of the bigger plan of the Lord, bigger plan of Srila Prabhupada, bigger plan. And that is Prabhupada wants. Lord Chaitanya is telling Nityanand Prabhu, Shuno Shuno Nityananda Shuno Haridas, घरे घरे गिया करो हो हमारा आज्ञाय प्रकाश. बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा. घरे घरे गिया मागो यही भिक्षा. Sri Chaitanya Mahaprabhu one day is calling Nityanand Prabhu and Haridas Thakur, Shuno Shuno Nityananda Shuno Haridas.
घरे घरे गिया करो यही आज्ञा प्रकाश. गो एंड टेल पीपल माय आज्ञा. व्हाट इज दैट आज्ञा? बोलो कृष्ण. बोलो कृष्ण. कृष्ण बोलो कृष्ण. भजो कृष्ण. करो कृष्ण शिक्षा. What does it mean? Chant the holy names, worship Krishna, and learn the teachings of Krishna as given in the Gita and in the Bhagavatam. घरे घरे गिया मागो यही भिक्षा. भिक्षा मांगते हैं ना साधु लोग, थोड़ा दान दे दो, थोड़ा दान दे दो. नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, व्हाट भिक्षा यू शुड आस्क? डोंट आस्क फॉर ग्रेन्स, डोंट आस्क फॉर फ्रूट्स, डोंट आस्क फॉर मिल्क, डोंट आस्क फॉर मनी, डोंट आस्क फॉर शेल्टर. आस्क फॉर, can you please chant the holy names for me? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram. So Sri Chaitanya Mahaprabhu wants us to chant the holy names. Sri Nityanand Prabhu, as a servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu, is Guru Tattva. Nityanand Prabhu is Guru Tattva. But till the age of 32, Nityanand Prabhu did not preach to anybody. You know why? Because Sri Chaitanya Mahaprabhu से उनका मिलन हुआ नहीं था, and Sri Chaitanya Mahaprabhu had not ordered him. The actual original Guru gave up the duties of Guru. Why? Because he has not been ordered by his master Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो नंदन आचार्य भवन में जब पहली बार मुलाकात हुई, उस समय के बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बताया, नित्यानंद यू शुड प्रीच, यू शुड स्प्रेड द होली नेम. तब जो नित्यानंद प्रभु को आग लग गई. तो क्या आग लगी? कहां तक आग लगी? 32 साल तक श्री नित्यानंद प्रभु ने प्रचार नहीं किया. और एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बोला यू शुड प्रीच, टू व्हाट एक्सटेंट डिड नित्यानंद प्रभु को इन नवद्वीप? गिव हिम अ बिग हैंड. Nityanand Prabhu said, my master has a plan, my master has a desire. He wants the whole world to chant in dancing of the holy names. And who are these two people? तो गांव वाले बोले, don't even look in that direction. Their name is Jagadanand and Madhavanand. They are born in Brahman families, but they have fallen in bad association and they do all kinds of crimes every day. हमारे पास ये साक्षी माला है ना, एक माला की डाउन, 2 माला की डाउन, 3 माला की डाउन. वैसे जगाई मधाई के पास एक दूसरी साक्षी माला थी. मर्डर किया, आज किया, 1 माला डाउन. घर जलाया किसी का, तो they had 16 sins. And every day systematically they would break all the regulative principles. आज वो वाले regulative principle break किया, यहाँ सुबह किया, so माला डाउन. They were systematically breaking all the principles, all the sins, everything they were doing wrong. And villagers said, don't even look in that direction. You know what Nityanand Prabhu told Haridas Thakur? Nityanand Prabhu is saying, our master wants to spread the holy names. And people are not really sure. उस समय नवद्वीप के सारे लोगों में इतना विश्वास नहीं था ये हरि नाम में. Only a few Vaishnavas had faith. Nityanand Prabhu saying, Haridas Thakur, somehow or the other, if we can convert these two, then everyone will say that evil Jagai and Madhai, they chanted the holy names which Nimai Pandit is saying. And Nimai Pandit's holy names have transformed the character of Jagai and Madhai. It means the medicine of the holy names is really potent. And I think we should also chant the holy names. So Sri Chaitanya Mahaprabhu के प्लान में नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का प्लान को कैसे हम सक्सेसफुल करें. तो उनको लगा सबसे क्रिटिकल 4th स्टेज कैंसर अगर कोई है, सब डॉक्टर ने उनको बोला है ये नहीं जिएगा. दूसरे हॉस्पिटल में गए, नहीं जिएगा, गॉन, 6 months he is leaving. And then some naturopathy doctor says, I will cure you. And he cures. What will happen to that naturopathy doctor's practice? बढ़ जाएगा, फेमस हो जाएगा. बोले गए जो सब डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिया वो ये डॉक्टर ने ठीक कर दिया. नित्यानंद प्रभु was thinking like this. जगाई मधाई की छांव से लोग डरते थे. वो जगाई मधाई को अगर मैं किसी बहाने परिवर्तित कर दिया तो पूरी दुनिया हरि नाम में नाचेगी, बोलेगी जगाई मधाई अगर परिवर्तित हो सकता है, मतलब नीमाई पंडित जो बोल रहा है हरि नाम करना है, हरे कृष्ण बोल रहा है, उसमें शक्ति है करके. नित्यानंद प्रभु वेंट फॉर द बिगेस्ट एडवेंचर. टिल नाउ नो प्रीचर हैज गॉन फॉर दिस काइंड ऑफ एन एडवेंचर. 2 rogues completely drunk, people would stay away from them. Nityanand Prabhu went to them and said, my dear friends, please chant the holy names. And
You know, there are many details of the story, but Jagai and Madhai were completely right? But Vrindavan Das Thakur explains this, drunk. Right? Who are you? तो क्या है? Are you in your senses? मालूम है ना हम लोग कौन है? पुलिस डरती है हमसे. In the description in Chaitanya Bhagavat, it is mentioned the guards of the king would fear Jagai and Madhai. And to them, Nityananda Prabhu is saying, can you please chant the holy names? They said, दिखाता हूँ तुझे. वो मटका फोड़ दिया और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को मारने के लिए दौड़े. तो नित्यानंद एंड हरिदास आर रनिंग और पीछे जगाई मदाई दौड़ रहे हैं. एंड हरिदास इज टेलिंग नित्यानंद प्रभु, आज अगर जिंदा बचे तो बहुत अच्छी बात है. दे आर जोकिंग बिकॉज हरिदास ठाकुर इज ऑल्सो ए सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड. तो दोनों भाग रहे हैं लेकिन उसमें मजे ले रहे हैं. सी प्रीचिंग मतलब क्या, जब अड़चन आती है तो उसमें मजे ले रहे हैं. बोले आज क्या इंसल्ट हो गया सबके सामने, हमको बोले क्या ये तिलक बिलक से कुछ नहीं होता है कि नहीं. एंड व्हाट दिस बुक्स आर गोइंग टू डू, गीता इज गोइंग टू डू दैट. सो द शेल्टर ऑफ ए प्रीचर इज अनदर प्रीचर. ही शुड कम टू द आश्रम एंड से. आज मालूम है क्या हुआ, सबके सामने मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो दो गुंडे आए और बोले ए तेरे गीता से क्या होने वाला है. सबके सामने मेरी हंसी उड़ा दी उसने. तो दूसरा प्रीचर बोलेगा ये तो कुछ नहीं, इससे बड़ी हंसी है तो मेरी हुई आज, मिला हाथ. We should have fun with each other as we are spreading the holy names, as we are spreading the message of the Lord. तो हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, तुम ऐसे हो, आज अगर जिंदा मैं लौटा तो भगवान की देन है. और नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, मेरे को क्या बोल रहे हैं? हाँ, what kind of a master you have? You're crazy master? He is saying that the whole world should chant the holy names, and I am an innocent person. What can I do? I obeyed the order and I went to him. And because of your master, now all of us, both of us will die now. And in this way, Haridas Thakur is making fun of Nityananda Prabhu, and Nityananda Prabhu is making fun of Haridas Thakur. But both of them are completely committed to carrying out the order of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Somehow or the other they escaped. क्योंकि इनका जो शरीर था, ऐसा मोटा मोटा शरीर था, ज़्यादा दौड़ नहीं पाया वो. फिर रुक गए. एंड देन समहाउ दे एस्केप्ड. ओके, जान बची सो लाखों पाए. राइट. व्हाट वुड यू डू इफ यू एस्केप्ड फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ लाइक दिस? उस दिशा में देखेंगे नहीं. आफ्टर 2-3 days नित्यानंद प्रभु वाज अलोन. नाउ दिस टाइम हरिदास ठाकुर वाज नॉट देयर. ही अगेन सॉ जगाई एंड मदाई एंड ही सेड, पिछले समय का काम बाकी है. But all the time, what is his plan? What is his mood? नित्यानंद प्रभु का मूड क्या है? Deep faith in the order of the Lord. अगर कृष्ण ने बोला है युद्ध में जीत पांडवों की होगी. कैसे होगी वो भगवान देखेंगे. हम क्या करेंगे? निमित्त मात्र भव सव्यसाची. अगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला है ये पूरी दुनिया में हरि नाम की गूंज उठेगी तो होगी. कैसे होगी? निमित्त मात्र भवस. तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं पिछले बार जान बची लेकिन अभी छोड़ूंगा नहीं मैं. वापस गए जगाई मदाई के पास और बोले बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा. दिस टाइम तो मदाई हो गया, फ्यूज उड़ गया उसका. उसने मटका ठाक करके मारा उसके इधर, ऐसे खून बहने लग गया. एंड सम डिवोटीज दे सॉ दैट, दे रैन टू श्री चैतन्य महाप्रभु. दे सेड, Nitai, he's so innocent and he has so much faith in your. He went again to Jagai and Madhai. एक बार तो बचा लिया आपने, दूसरी बार वापस गए. This time Madhai took blood from the forehead of Shri Nityanand Prabhu. चैतन्य महाप्रभु हमेशा पूरे उनके जीवन में 48 years Shri Chaitanya Mahaprabhu stayed. He always mentioned त्रिनादपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि. In this incident, Shri Chaitanya Mahaprabhu did not say that. When you are insulted, then we practice Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna. When a devotee is insulted, Shri Chaitanya Mahaprabhu came running and said, Chakra! चक्र निकाला, सुदर्शन चक्र. जैसे माधाई ने सुदर्शन चक्र देखा, बोले चलो बोलो राम नाम बोलो. श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर के श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, यू हैव नॉट डन एन ऑफेंस टू मी, यू हैव डन एन ऑफेंस टू नित्यानंद. मेरे पैरों में पड़ने से कुछ होने नहीं वाला है, उसके पैरों में पड़ो.
Similar incident happened in Krishna Leela. पांडवों को वारणावत दे दिया, वो पूरी बंजर जमीन थी, तो वहां जाके देखा तो वहां तो पूरा एक जंगल था, तो जंगल में क्या करेंगे, महल कैसे बनाएंगे? सो कृष्णा सेड we'll burn the forest. So they started burning the forest. In the forest there was Maya Danav. He was staying there. Then Maya Danav saw कौन जला रहा है इसको, अर्जुन जला रहा है, तो अर्जुन के ऊपर अटैक किया उसने. जब अर्जुन के ऊपर अटैक किया मया दानव ने, तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भेजा, तो उसको समझ में आया, अरे सुदर्शन चक्र आ गया तो अभी चुप, तो कृष्ण के चरणों में गिर गया वो. तो कृष्ण ने क्या बोला, यू अटैक्ड अर्जुन, दैट्स वाई सुदर्शन चक्र केम, सो यू बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम अर्जुन. सो उसको समझ में आया, चलो जो भी है कोई तो फॉरगिव कर लो, दोनों में निपटा लो. So he came to Krishna. Krishna is telling Arjun. He fell at the feet of Arjun. When he fell at the feet of Arjun, Arjun said, आपने कोई अपराध किया ही नहीं है, माफी किसकी है? आप कुछ मेरे बारे में कुछ बुरा कहेंगे और बोलेंगे सॉरी मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो मैं माफी करूं, आपने कुछ गलती की नहीं तो माफी किस बात की? तो बोलता है, अरे यार ये लोग एक दूसरे में मेरी जान ले लेंगे. इसकी नम्रता और इसका ये, मेरा क्या होगा? अगेन ही वेंट टू कृष्णा. So he fell at the feet of Krishna. Krishna sent him to Arjun. Arjun is saying, there is no aparadh for me. You take shelter of Krishna. He again went to Krishna. Then Krishna is saying, okay, do some service for Arjun. अर्जुन के लिए कुछ सेवा करो. मेरी शरण लेनी है, तुझे सुदर्शन चक्र नहीं चाहिए, तो क्या करेगा? तो अर्जुन की सेवा कर. फिर अर्जुन के पास गया, बोले क्या सेवा करो? तो बोले कुछ नहीं, हम यहाँ पे ये जलाने के बाद में एक महल बांधने वाले थे, तो आप हमको महल बांध के दो. Maya Danav accepted that at his service and he transformed that Varnavat, that Khandavprastha into Indraprastha. इंद्रप्रस्थ कैसे हुआ? Maya Danav ने बनाया वो महल. तो ये स्टोरी जब आती है श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो में, in one place this story is quoted by Srila Prabhupada in one purport. At the end, in that purport, Prabhupada writes, the mercy of devotee is that he asks you to surrender to Krishna, and the mercy of Krishna is he asks you to serve the devotees. The mercy of a devotee is that he asks you to surrender to Krishna, and the mercy of Krishna is he asks you to serve the devotees. So वैसे इन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया, तो नित्यानंद, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसको बोले उनकी शरण लीजिए, तो नित्यानंद प्रभु के पास गए, तो नित्यानंद प्रभु को बोले माफ कर दीजिए. तो नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? सुनना है? किसको सुनना है? नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, माय डियर श्री चैतन्य महाप्रभु, इन माय लाइफ इफ आई हैव डन एनी भक्ति, प्लीज गिव द क्रेडिट ऑफ माय भक्ति. जो भी छोटी मोटी मैंने भक्ति की है, जो भी की है, वो पूरा क्रेडिट मेरी भक्ति का माधाई को दे दो. श्री चैतन्य महाप्रभु started shivering, understanding the compassion of Nityanand Prabhu. How can somebody be so compassionate कि माफ कर दो नहीं बोले, मैंने जो हरि नाम किया है, मैंने जो भक्ति की है, वो सारी उनको दे दो, लेकिन उनको माफ कर दो. और बोले खून तो ऐसे ही, वो थोड़ा सा ऐसे निकला, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा इधर गीला हो गया, कपड़े तो साफ है. He totally downplayed it. You know why? Because his point was, फोर्थ स्टेज कैंसर का पेशेंट जब ठीक होगा, इनकी दवाई से इनका नाम बढ़ेगा, और इनका जो प्लान है कि सब लोगों ने हरिनाम करना चाहिए, वो प्लान बढ़ेगा. दिस इज कॉल्ड enthusiasm. And to actually spread the holy names, you require enthusiasm. Enthusiasm is based on deep faith. So when you have deep faith, when you are enthusiastic, then you can actually go on the biggest adventures. कि दुनिया में सब लोग कृष्ण भगवान के विरुद्ध हैं, श्री कृष्ण भगवान की सेवा के विरुद्ध हैं, भक्ति के जो प्रिंसिपल्स हैं, तत्व हैं, उनके विरुद्ध हैं. एक प्रचारक क्या सोचता है? प्रचारक सोचता है मुझे अपने गुरु को प्रसन्न करना है, प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट उठाए, चलो मैं भी थोड़ा कष्ट उठाता हूँ, एक छोटा सा सैंपल कष्ट उठाता हूँ और प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार करता हूँ. तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला? 16 माला, 16 माला. प्रभुपाद ने बोला 4 नियम, तो 4 नियम. प्रभुपाद अगर 2 नियम बोलते तो 2 नियम. अपने को क्या लेना देना है? आप बोलो क्या करना है? 4 नियम, 4 नियम, 16 माला, 16 माला, एकादशी, एकादशी, बोलो और क्या करना है? सो दिस इज कॉल्ड मेकिंग आवर ओन प्लान्स in such a way that our plans fit into the plan of the Lord, and that is what is actually the greatest need of the hour.
आज की दुनिया में जो बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग हैं बहुत प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं? कैसे लोगों को ठगेंगे, कैसे लोगों को चीटिंग करेंगे, कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, कैसे 4 नियमों को भंग करेंगे। 4 नियमों को भंग करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं होती है। हाउ टू ब्रेक द 4 रिलेटिव प्रिंसिपल्स, बेसिकली सिटी इज जस्ट बेस्ड ऑन दिस ओनली। जितने भी होटल हैं, अरे प्रभु ये एरिया में आज सुबह हमको बता रहे थे कौन सा अच्छा, यशवंत नगर है ना सबसे अच्छा एरिया में। यशवंत नगर में नया होटल खुला है, बहुत महंगा होटल है। उस महंगे होटल में क्या होगा? महंगा, सबसे महंगा होटल इंदौर में क्या होगा? 4 नियम जो हम फॉलो करते हैं वो कैसे टूटेंगे, उसके लिए वो सबसे महंगा होटल है वो, है कि नहीं? क्योंकि 4 नियम पालन करने के लिए पैसा लगता है क्या? just think of this from this perspective. The road to hell is actually very costly, and the road to Vaikuntha is actually free of cost. But still people are crowding on the other road. मांसाहार जो भी है, चिकन मटन जो भी है, 1 किलो का भाव क्या है बताना मत। और अगर हमको सब्जी खानी है, हरी सब्जी है, बीन्स, भिंडी, जो भी आप, कॉलीफ्लावर, कैबेज जो भी है, don't tell me the rates. What is the comparison of the rates? Anybody knows? I don't know. I am out of touch. The rate of हरी सब्जी to the rate of meat, what is the comparison? हाँ जी, 1/10, right? What is the rate of a bottle of water to a bottle of liquor? What is the comparison of the rate? Right? So just a simple comparison है. No issues. No, he's helping. That's all right. Good. So my point is, कैसे युग में, कैसे काल में हम लोग रह रहे हैं कि 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा हम नरक जाने की दवाई खरीदने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर मुफ्त में हमको भगवान के चरणों में कोई अर्पण कर रहा है और बोल रहा है इससे तेरी शांति होगी, तुझे मन की शांति मिलेगी, और मुझे तुझे डेली दक्षिणा नहीं देनी है, डोंट गिव मी एनी दक्षिणा, जस्ट चैंट द होली नेम्स, यू बिकम हैप्पी, you become stress free, you earn the blessings of the Lord, you preach the Gita, you spread the holy names, you become a very nice person in the eyes of Jagannath ji. बस जब ऊपर जाओगे भगवान के पास तो बता देना कि मेरा प्रचारक का नाम ये है, तो भगवान बोलेंगे अच्छा तुझे इसने प्रचार किया, चलो उसको भी बुलाता हूं। 4th कैंटो ध्रुव महाराज को लेने के लिए वैकुंठ विमान आता है, और वैकुंठ विमान में ध्रुव महाराज बैठते हैं, और ध्रुव महाराज को याद आता है मेरी जीवन की दिशा ऐसे जा रही थी, आई वॉज एनवियस ऑफ माई स्टेप मदर। सुरुचि ने बोला ए उतर, तुझे अपने पिताजी के गोद में बैठना है, मुंह देखा है क्या आईने में, मेरे पेट से जन्मा नहीं है तू, तो वो सुनीति के पेट से जन्मा है, उतर नीचे। द भागवतम डिस्क्राइब्स ही वॉज हिसिंग लाइक ए स्नेक। छोटा बच्चा है 6 साल का, लेकिन क्षत्रिय खून है। He was hissing like a snake. ऐसे सांप की तरह हाफते हाफते अपनी माँ के पास गया, और जब तक ध्रुव अपनी माँ के पास पहुंचा तब तक दास दासियों ने पहले ही अपने माँ को बोल दिया था आपके बेटे को अपने पिताजी के गोद में बैठने नहीं दिया आपकी सौतेली, और बहुत अपमान हो गया ध्रुव का, और ऐसे हाफते हाफते अभी आपके पास आ रहा है मिलने के लिए। जैसे ध्रुव आया, सुनीति ऑलरेडी न्यू what has happened. And she knew what is going to happen in the mind of Dhruv Maharaj. So she said, first instruction, he said, if somebody thinks bad of you, you don't think bad of him. When somebody thinks bad of you, he will suffer his own karma. You don't create bad karma by thinking bad of him. This is the first instruction of Suniti in the Bhagavatam. So, जो ये क्रोधवश, द्वेषवश ध्रुव आया था, उसको पहली ही सीख उसकी माँ ने दे दी, लोग तुमसे द्वेष करे लेकिन बेटा तुमको अगर भगवान को पाना है तुम द्वेष मत करना किसी का। एंड ध्रुव एक्सेप्टेड इट। ध्रुव डिड नॉट फाइट विद हिज मदर। ध्रुव ने स्वीकार कर लिया। तो उनकी एक दिशा में जा रहे थे ध्रुव, द्वेषवश, क्रोधवश, और उनकी माँ ने दिशा बदल दी। वो दिशा बदल बदल के जंगल चले गए। जंगल में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। भगवान के दर्शन हो गए। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। तो कैसे, कौन सी दिशा में चले गए?
तो जब ध्रुव महाराज इज सिटिंग इन वैकुंठ विमान एंड गोइंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और जो दो उनके साथ में नंद और सुनंद करके, दे वर टू वैकुंठ वासीज हु वर फैनिंग ध्रुव महाराज, तो उनको पूछते हैं मेरी माँ ने ना मेरा दिशा परिवर्तन किया था, वो मेरी माँ कहाँ है? तो नंद और सुनंद बोलते हैं लुक देयर इन द स्काई अहेड ऑफ यू देयर इज अनदर वैकुंठ विमान, देयर वाज अनदर वैकुंठ विमान, उसमें उनकी माँ बैठी थी। उसके परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं सिमिलरली वी आर ऑल्सो प्रीचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड and maybe one of our disciples will become a pure devotee, and when he goes back to the spiritual world he may recommend our name. तो प्रभुपाद जी की नम्रता क्या है, मैं प्रचार कर रहा हूं, शायद मेरे प्रचार से कोई भगवत धाम चले जाए, और भगवत धाम जब पहुंचेगा तो बोलेगा ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी ने मुझे सिखाया करके, तो उनके कहने पे मुझे भी वैकुंठ में एंट्री मिलेगी। तो ऐसे ये जो हमारे आचार्य हैं इतनी नम्रता से, इतने द्वेष मुक्त अंदर है, तब जाके उनके मन में भगवान के प्लान के प्रति श्रद्धा आती है, उससे उत्साह जागृत होता है, और उससे, उस उत्साह से, पवित्र उत्साह से कोई भी जीवन में संकट आए उनको डरा नहीं सकते आप। प्रभुपाद को हार्ट अटैक आए तो क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका में एक बहुत बड़ी केस चली इस्कॉन के खिलाफ कि दिस इज ए कल्ट, कल्ट मतलब ये लोगों को बेवकूफ बना रहे। सो व्हाट, उस समय आदि केशव स्वामी थे, तो आदि केशव स्वामी को बोले प्रभुपाद यू टेक ऑल अवर बुक्स इन द कोर्ट एंड यू टेल द जज यू रीड ऑल दिस बुक्स। क्यों? क्योंकि ये किताबों के आधार पे हम लोग प्रचार कर रहे हैं। अगर ये किताब में कल्ट है, अगर ये किताब में कुछ गलत लिखा है तो हम लोग कल्ट है, लेकिन वो जो अपोजिट पार्टी है बोल रहे थे ये देखो नौजवान लोगों को अपने माता पिता से अलग कर रहे हैं, नौजवान लोगों को सब गलत आदतें छुड़वा रहे हैं, उसके ऊपर तो अमेरिका खड़ा है। मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, वुमनाइजिंग, और ये हमारे अमेरिका के जो 4 खंबे हैं उसी को तोड़ रहे हैं ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी। प्रभुपाद सेड डोंट फियर द कोर्ट केस, वो कोर्ट केस से डरिएगा मत आप हमारे सारे किताबों को लेके जाइए और कोर्ट को बोलिए ये हमारी किताब है, पढ़िए, इसमें अगर कुछ गलत है तो गलत है। तो कोर्ट ने देखा ये पूरे भागवतम सेट लेके आए वो कोर्ट में, अभी पूरा भागवतम सेट कब पढ़ेंगे वो कोर्ट में? तो कोर्ट का जो जज था उसने बोला एक काम करो, एक हमारे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, बट इट्स देयर हियर, यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे हिंदुइज्म के, तो बोले ही इज अ बिग एक्सपर्ट। तो जज ने बोला ये सब किताबें नहीं पढ़ सकता मैं, तो उसको फोन किया उसने कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ इस्कॉन? तो उन्होंने बोला आई हैव रेड द बुक्स ऑफ एसी भक्तिवेदांत स्वामी, इस्कॉन इज बोनाफाइड रिलीजन, नया कुछ मनगढ़ंत नहीं है, ओरिजिनल चीज है, क्योंकि हम रास्ते को भूल के चले गए, इसलिए हम जब रास्ते में वापस आ रहे तो हमको कठिनाई हो रही है कि नहीं? मेन रोड छोड़ के हम कहीं सड़क के दूसरे चले गए, अभी मेन सड़क पे अगर कोई ला रहा है तो तकलीफ होगी कि नहीं हमको? तो वो तकलीफ किसने लाई, हमने लाई कि किसी और ने लाई? तो बोले इस्कॉन इज नॉट ए कल्ट, इस्कॉन इज प्रीचिंग बोनाफाइड रिलीजन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो जज ने डिक्लेयर कर दिया इस्कॉन इज बोनाफाइड रिलीजन, न्यूयॉर्क टाइम्स में आ गया इस्कॉन इज बोनाफाइड रिलीजन। एक खबर आदि केशव स्वामी प्रभुपाद के पास लेके गए, प्रभुपाद बोले वेरी गुड, लॉर्ड कृष्णा इज हेल्पिंग अस। तो कोर्ट केस में अगर निकाल लगता था, ये परिणाम आता था कि इस्कॉन इज नॉट बोनाफाइड, इस्कॉन इज कल्ट, इस्कॉन के ऊपर बैन लग जाता। अमेरिका में यू कैन नॉट प्रीच, लेकिन इतना बड़ा, इट वॉज ए वेरी बिग थिंग, समझा ना? लीगल सिस्टम आपके अगेंस्ट चली जाती है। एक हो गया कि आप सड़क पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कोई गुंडा आया और आपको धमकी दिया, दूसरा है कि ए लॉ इज पास्ड, द होल पुलिस विल गो अगेंस्ट यू, you cannot preach because you are a cult. Can you imagine the threat to ISKCON? But Prabhupada said ISKCON is not different from Krishna. Nobody can hurt ISKCON from outside. If there is a danger to ISKCON, it is from inside. हम जब एक दूसरे से लड़ाई करेंगे तब ISKCON को नुकसान होगा। अगर कृष्ण भगवान का दायां हाथ उनके बाएं हाथ को मारेगा तो तकलीफ होगी, लेकिन कृष्ण भगवान को बाहर का कोई नहीं मार सकता। लेकिन कृष्ण भगवान का ही एक दाया हाथ अपने बाएं हाथ को मारा है तो कृष्ण को तकलीफ हो सकती है। तो बोले ISKCON कैनॉट थ्रेट फ्रॉम आउटसाइड,
बट येस देयर इज अ थ्रेट फ्रॉम इनसाइड. अगर हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो तकलीफ. इसका मतलब है जो भी प्रभुपाद जी ने स्थापित किया, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई, लेकिन जब भी कठिनाई आई, प्रभुपाद ने बोला अगर श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है तो ये होगा. तो हम आज श्री चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, श्रील प्रभुपाद को ये प्रार्थना कर सकते हैं, हम भी क्या इस मिशन का भाग बन सकते हैं? क्या हम भी आपकी सेवा में एक राई का दाना की सेवा कर सकते हैं? अगर आपकी इच्छा हो तो. क्या लगता है श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, प्रभुपाद अगर हमने ये विनती दी तो क्या बोलेंगे? नहीं, तुम्हारी जाति खराब है, तुम गरीब हो, तुम्हारा नाम मुझे पसंद नहीं. क्या बोलेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु? एक बार पंकज अंगरी प्रभु और जनानिवास प्रभु क्लास दे रहे थे, तो उनको मेरे एक दोस्त ने पूछा, When I chant the holy names, I am not able to control my mind. मेरा मन इधर उधर भागता है. Can you please tell me how to control my mind? तो जनानिवास प्रभु ने क्या उत्तर दिया? You know who is जनानिवास प्रभु? हेड पुजारी ऑफ मायापुर टेम्पल. उनको प्रभुपाद जी ने बताया ये राधा माधव है, आपको इनकी सेवा करनी है. लास्ट 50 years इज सर्विंग राधा माधव. पुजारी सेवा. जब गंगा की बाढ़ आती है तो राधा माधव मंदिर में मगरें आई हैं, मगरमच्छ. उस समय जब सब लोग छोड़ के गए तो जनानिवास प्रभु और पंकज अंगरी प्रभु बोट में बैठ के जाते थे, ऑल्टर खोलते थे, उनको भोग लगाते थे और आरती करते थे. लेकिन राधा माधव की सेवा बंद नहीं हुई. मगरमच्छ घूम रहे थे उधर, लेकिन बोले नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला है कि राधा माधव की सेवा करनी तो करनी है. वो जनानिवास प्रभु. तो जनानिवास प्रभु जब बोला I cannot control my mind when I am chanting, what should I do? जनानिवास प्रभु ने बोला, we are not yogis that our focus is to control the mind. We are bhaktas, our focus is to chant the holy names. योगी लोग क्या करते हैं? ओम, मन को काबू में करते हैं. बोले हमारा रास्ता मन को काबू में रखने का नहीं है. हमारा रास्ता है हरि नाम लेने का. हरि नाम में प्रयत्न कीजिए, मन को काबू करने का प्रयत्न नहीं कीजिए. लेकिन जब बार बार आप हरि नाम में प्रयत्न करेंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु विल गिव यू टेस्ट फॉर द होली नेम. डोंट ट्राई टू कॉन्कर द होली नेम विथ योर एफर्ट्स. हमारा क्या प्रोसेस है? भक्ति योगा का प्रोसेस क्या है? ट्राई एंड प्रे. सेवा करने की कोशिश करनी है और सेवा करने के समय जब कोशिश करते हैं, जब तकलीफ होती है तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. उस तकलीफ से भगवान की शरण लेनी है. भगवान, हे भगवान, इतनी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ. अगर उस सेवा करने से में कुछ तकलीफ आई, आप देख लेना, मैं क्या करूँ, मैं तो छोटा सा जीवात्मा हूँ, आप देख लेना करके. दिस इज अवर प्रोसेस. सो अवर प्रोसेस इज नॉट टू फाइट विद प्रॉब्लम्स. अवर प्रोसेस इज टू एम्ब्रेस कृष्णा. Many times we become members of International Society for Problem Consciousness. अरे ऐसा हो गया, अरे उसने ऐसा कह दिया, अरे वो उसने कहा तो क्या कर सकता है. लेकिन भगवान ने कहा, उसके तरफ तो ध्यान नहीं है आपका. भगवान तो बोल रहे प्लीज चैंट माई नेम्स, प्लीज रीड माई बुक्स, राइट. तो इसने मेरे बारे में क्या कहा, उसने मेरे बारे में क्या कहा, वो इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने मेरे से क्या अपेक्षा व्यक्त की है, क्या इंपॉर्टेंट है. इज इट नॉट ट्रू? Many times we have forgotten what Krishna is asking us to do, and we become more busy in meditating on what he thinks about me and what he thinks about me. Why we are members of International Society for Problem Consciousness? Why we are not members of International Society for Krishna Consciousness? So don't tell God how big your problems are. Tell your problems how big your God is. But many times we tell God how big our problems are. We have to tell our problems how big our God is. So whatever little energy we have, whatever little intelligence we have, make plans. आलसी मत बनिए. प्लान बनाइए और बोलिए कैसे मैं हरि नाम को स्प्रेड करूं, कैसे मैं बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करूं, कैसे मैं प्रचार के कार्य में कुछ मदद करूं. मैं तो हूं छोटा सा, लेकिन गिलहरी को भी वो ब्रिज बनाने में प्रभु रामचंद्र जी ने चांस दिया था. तो मैं तो गिलहरी का भी छोटा एक कण हूं. तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय. मैं तो धूली का एक कण हूं, लेकिन
मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, विल श्री चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट यू? विल श्री नित्यानंद प्रभु रिजेक्ट यू? विल प्रभुपाद रिजेक्ट यू? नो. प्रभुपाद जी के एक शिष्य से कुछ गलती हो गई, तो गलती होने के बाद में प्रभुपाद जी को मिले और बोले, प्रभुपाद आई डिड दिस मिस्टेक, विल यू रिजेक्ट मी? तो प्रभुपाद बोले, श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज गॉड हिमसेल्फ, ही कुड रिजेक्ट, but I am dependent on you, I cannot reject you. Sri Chaitanya Mahaprabhu also did not reject, but there was one devotee called Chota Haridas. So there is one devotee whom Sri Chaitanya Mahaprabhu also became very angry. So he also committed some similar mistake. So this devotee was very fearful. अरे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला उसका मुझे सूरत नहीं देखनी, उसको निकाल दो बाहर. तो डर के मारे प्रभुपाद जी के पास बोले, प्रभुपाद I also committed that same mistake, will you also reject me? प्रभुपाद बोले, श्री चैतन्य महाप्रभु is supreme personality of Godhead, he can reject. I cannot reject. I cannot reject anybody. अगर हम प्रभुपाद जी के सामने जाएं और बोले, हे प्रभुपाद जी, जो भी हूँ जैसा भी हूँ, लेकिन आपके लिए सेवा करने के लिए इच्छुक हूँ. However I am dirty, I am fallen, but I have one small desire. I want to distribute your books. I want to spread the holy names. I want to be a servant of your servants. Will Prabhupada reject us? And if Prabhupada accepts us, what is more greater benediction than that, right? So these are my few thoughts on how to dare to share the process of bhakti everywhere. It depends on, we started, the first sentence of my class was, if you want to share bhakti, you cannot share something which you don't have yourself. So first we have to become sincere devotees. When we get bhakti, then we can share that bhakti. जो हमारे पास नहीं है वो शेयर नहीं कर सकते. तो पहले हमको अच्छी साधना करनी पड़ेगी, हमको अच्छा अध्ययन करना पड़ेगा, हमको अच्छा सदाचार करना पड़ेगा, हमको अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, फिर वो शेयर कर सकते हैं. और ये सब शुरू कहाँ से होता है? श्रद्धा से. We have to associate with devotees who have श्रद्धा. जिन भक्तों को श्रद्धा है उनके साथ सत्संग करेंगे तो हम में वो श्रद्धा हमारे हृदय में स्थानांतरित होगी. वो श्रद्धा से रजोगुण नहीं बाहर निकलता है, उससे उत्साह बाहर निकलता है, और उस उत्साह से बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए हमको रोमांच तैयार होता है. अरे कुछ करेंगे, अभी महाप्रभु के लिए कुछ करेंगे, प्रभुपाद जी के लिए कुछ करेंगे. दैट इज द होल एडवेंचर. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. जय श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय निताय गौर प्रेमानंदे. हरे. Anyone has any questions, you can ask. Yeah. Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली आज मैं बोल रहा था डिवोटी से दैट, क्या है, सुना ही नहीं दे रहा ना आपका क्वेश्चन. हरे कृष्णा प्रभु जी. सो टुडे आई वाज सेइंग टू द डिवोटीज कि आज हमारा स्पिरिचुअल फीस्टिंग हो रहा है, बिकॉज मॉर्निंग में आपका लेक्चर मिला एंड देन अगेन अभी रिसेंटली हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी गिव सो मच इंस्पिरेशन, देन अगेन बाय योर डिवाइन वर्ड्स वी आर सो मच इंस्पायर्ड. सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी. सो मेनी थिंग्स टू लर्न. आई हैड अ क्वेश्चन जो आपने बोला, प्रभु जी भी मेंशन किए थे उनकी क्लास में, दैट डिवोटी फ्रेंडशिप, एंड आपने जैसे बोला प्रीचर का एक सहारा दूसरा प्रीचर होता है. Yes. So how to develop that relationship in a deep manner, like really core to the heart, because we have very less time to spend with each other. There's so many services and sometimes their services are also in different field of activity. So that I wanted to know. Yes. Thank you. So actually the real feast was Radhesham Prabhu's class. लेकिन फीस्ट खाने के लिए थोड़ा एपेटाइजर चाहिए. तो सुबह का क्लास मेरा एपेटाइजर था, उससे थोड़ी भूख बढ़ी, राधेश्याम प्रभु क्लास, और फिर अच्छी फीस्ट खाने के बाद में कुछ वो सौंफ वगैरह देते हैं ना, उसको पचाने. सो माय 2 classes आर ट्राइंग टू सपोर्ट राधेश्याम प्रभु's क्लास. ऑब्वियसली ही इज a very pure devotee, and the way he has so much faith and the way he has expanded youth preaching is really amazing, right? About your question, आप में से कितने लोग जब एग्ज़ाम होती है तो पढ़ाई का लोड बढ़ जाता है? सेमेस्टर एग्ज़ाम इंजीनियरिंग की वगैरह अगर हो तो बहुत पढ़ाई होती है, राइट? एटलीस्ट इन दोज 15-20 days. So there is so much to be read, there is so much to be studied, there is so much to be revised. But how many of you, for those last 15 days, when semester exam comes, don't eat? Because every meal consumes at least 15 minutes minimum.
फास्ट आदमी भी है तो 15 मिनट लगते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू डोंट ईट? क्योंकि पढ़ाई करनी इंपॉर्टेंट है. सो पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए जिंदा रहना भी इंपॉर्टेंट है. सो ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी आर ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म, वी अंडरस्टैंड शरीर को अगर खाना नहीं देंगे तो शरीर चलेगा नहीं, और झपकी लगेगी तो पढ़ाई कैसे करेंगे. तो 10 मिनट का खाना खाने का जो समय है वो पढ़ाई के प्रतिकूल है कि पढ़ाई के अनुकूल है? आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम एवरीवन. बट जब हम खाना खाते हैं तो पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन आप लोग सब बोल रहे हैं, एक दो नहीं बोल रहे, सब लोग बोल रहे हैं कि खाना खाने का 10 मिनट का समय पढ़ाई के अनुकूल है. क्यों? अगर अच्छे से खाना खाएंगे तो झपकी नहीं आएगी और एनर्जी आएगी, शक्ति आएगी और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे. सिमिलरली व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट reliable loving relationships with devotees, if we don't have, we cannot survive in a world which is basically against pure devotional service. ये जो दुनिया है ये शुद्ध भक्ति के विरुद्ध है, और हम इस दुनिया में जाके प्रचार करना चाहते हैं. कैन यू इमेजिन व्हाट वी आर डूइंग? एक नदी है, नदी और ऐसे बह रही है, फ्लो में बह रही है, और आप एक मछली हैं और आप मुझे क्या बोल रहे हैं मालूम है? प्रभु जी मुझे विरुद्ध दिशा में जाना है. इज इट ए गुड थॉट? इट इज नॉट अ लॉजिकल थॉट, बट इट इज ए वेरी मर्सी अट्रैक्टिंग थॉट. तो हम सब कैसे हैं? जीवन का प्रवाह कैसे? अरे खाओ पियो मौज करो. पूरी दुनिया कैसे चल रही है? हाउ मेनी पीपल कम टू द टेम्पल एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंदौर? व्हाट इज द कंपैरिजन? यू कैन नॉट कंपेयर ओनली, राइट? तो पूरी इंदौर के जो जनसंख्या है उसके जो विचारों की नदी है वो किस दिशा में बह रही है? नीचे की दिशा में. दे आर गोइंग डाउन इन कॉन्शियसनेस एंड ए फ्यू पीपल आर गोइंग अपोजिट, राइट? इट्स ए हार्ड स्ट्रगल. इट्स नॉट इजी, बट महाप्रभु इज विथ यू, जगन्नाथ जी इज विथ यू, कृष्णा इज विथ यू, प्योर वैष्णवस आर विथ यू, राइट? एच्छाई गोसाई कोरी चरण वंदन, जहां होइते विघ्ननाश अभिष्ट पूर्ण. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? हु कैन टेल मी? एच्छाई गोसाई, ये जो 6 गोस्वामी है वृंदावन के, कोरी वंदन, उनको जो वंदन करता है, जहां होइते विघ्ननाश. आपके जीवन में जितने भी विघ्न आएंगे, लोग आपको अटैक करेंगे, जहां होइते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण. आपके मन में आध्यात्मिक इच्छाएं जो है वो पूरी होंगी, और आपके खिलाफ कोई भी कुछ आवाज उठाएगा वो नष्ट हो जाएगा. कब? जब हम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को नमस्कार करेंगे. आर यू रेडी? दुनिया की कोई शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं के खिलाफ खड़ी नहीं रह सकती. आर यू रेडी? तो उस कठिनाइयों से गुजरने के लिए हमको एक दूसरे का सहारा चाहिए. सो देयर इज अ चाइनीज सेइंग, इफ यू वांट टू वॉक fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. जल्दी जल्दी अगर पहुंचना है तो अकेले चलो, और अगर लंबा चलना है तो साथ में चलो. तो अपना क्या है? वैकुंठ का रास्ता कैसा है? बहुत लंबा है कि नहीं? तो इसलिए एक दूसरे की जरूरत है. Once we understand, eating food is not pratikul for studying, it is anukul for studying. It gives me energy for studying. Similarly, for preaching and facing all the challenges in preaching, you need friendship with other preachers, because then you understand मेरे साथ जो हो रहा है वो इसके साथ भी हो चुका है, तो एक आसरा मिलता है. नहीं तो preaching is not easy. When you are preaching to the masses, वो सब लोग, हम लोग एक एक वाक्य बोलते हैं ना, वो सब लोगों को तकलीफ होती है. हम लोग जब बोलते हैं सरेंडर टू कृष्णा, सरेंडर टू कृष्णा से छटपटाते हैं लोग. दे थ्रो देयर एनर्जी एट द प्रीचर. When you are speaking to 100 people and you are speaking strong, when you are speaking pure, the 100 people are getting agitated. बोले ये कौन है, ये क्या बता रहा है मुझे कृष्ण को सरेंडर करने के लिए. They throw their negative energy at the preacher. It's not easy to speak straight. You can speak a lot of jokes, उसमें negative energy नहीं आती, but if you are speaking the message of Rup Raghunath, they throw their energy at you. To handle that energy, you need the shelter of a preacher, and you share with that preacher, and that preacher says, don't worry, ये दुनिया का नियम है. दुनिया में जब किसी ने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया है, उसको क्रॉस पे लटका दिया है.
तुझे तो क्रॉस पे नहीं लटकाया है. So then you understand, I don't have to change my message, I have to change my consciousness. So many people, when they face resistance, they change their message. मैं बोलता अभी मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, मैं बोलूँगा जो कर रहे हो सही कर रहे हो, थोड़ा डोनेशन दे दो. That's what the world is doing. ISKCON के बाहर लोग क्या कर रहे हैं? तंबाकू खाते हो कोई बात नहीं, आप क्या करते हो? मदिरा पान करते हो, थोड़ी थोड़ी करना. मासा का करते हो, सिर्फ संडे को करना और डोनेशन देना. But only Prabhupada and Prabhupada's followers are speaking. No meat eating, no intoxication, no illicit sex, no gambling. If you want diksha, if you are serious, these are the rules. If you follow, you will get diksha. कौन बोल रहा है? हिम्मत है क्या किसी की बोलने की? भारत में ISKCON को छोड़ के you tell me one spiritual organization. 5 minutes I'll keep quiet. One spiritual organization that is talking about regulative principles. लगाओ ChatGPT. सच बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ. ChatGPT खोलो, डालो. Other than ISKCON, which religious institution, spiritual institution is mentioning the 4 regulative principles? बोलो. प्रभु ये करना टाइप बाद में बताना मुझे, मैं इधर ही हूँ, कल सुबह जा रहा हूँ मैं. I'll not go to Ujjain tomorrow, I'll stay here. If you show me one spiritual institution that is talking the truth. So, what Prabhupada is speaking is pure, although it is difficult. Take shelter, take help of devotees, don't compromise the message. प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी ये 4 नियम है ना, उसमें एक जो चौथा नियम है, नो इलिसिट सेक्स, वो एक को आप छोड़ दो. डिसाइपल्स, अमेरिकन आर सच नाइस पीपल ना, ऑनेस्टली बात करते हैं वो. तो बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन को छोड़ देंगे, गैम्बलिंग तो नहीं करते हैं ज़्यादा हम लोग, और मीट ईटिंग को पनीर बिनीर खा के हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा. इफ़ यू कॉम्प्रोमाइज, मतलब लेट गो ऑफ दैट इलिसिट सेक्स प्रिंसिपल, प्रभुपाद यू विल गेट लैक्स एंड लैक्स ऑफ डिसाइपल्स. एक नियम को कम कर दो, क्या प्रॉब्लम है इतना? प्रभुपाद सेड, these are not my rules, I did not make these rules, this I have received in parampara, I cannot change it, but I cannot reduce the rules, but I can support you to follow the rules. मैं नियमों का स्तर नीचे नहीं लाऊंगा, लेकिन मैं आपको आधार दूंगा ताकि आपको ऊपर उठाऊं और आप वो उच्च नियमों को पालन करें. This is our line. So our line is not to compromise, our line is to help devotees, motivate devotees, support devotees, encourage devotees to follow what Prabhupada has said. So we are dependent on each other. एकाकी आमार नाही पाय बल, हरि नाम संकीर्तने, तुमी कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने. So it's not just a song to be sung, it is our life's goal. So we have to regularly meet, we have to spend time with each other, we have to invite our friends to these camps and yatras and all that, so that they see, अरे इतने अच्छे इतने लोग हैं, अच्छी दोस्ती करते हैं, अच्छा शुद्ध जीवन जी रहे हैं, भगवान के अनुसार अपना जीवन को ढाल रहे हैं, क्यों नहीं मैं इससे जुड़ूं? People want to connect to good people. We just have to convince the people outside that we are good people. If we convince the people outside that we are good people, people want to join. Anybody is looking for good association. I don't know anybody who says, I am looking for some bad friends, I am looking for some non-trustworthy friends. Everyone is looking for trustworthy friends, is it not? We just have to convince them that we are what you are looking for. So don't look at time spent in devotee association as a hindrance to preaching. जैसे खाना खाने का समय पढ़ाई करने के समय के प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है, वैसे जब 2 वैष्णव एक साथ बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, कृष्णा कॉन्शियस गप्पे, राइट, इष्ट गोष्ठी जब होती है, दैट इज नॉट प्रतिकूल टू प्रीचिंग, दैट एक्चुअली गिव्स यू एनर्जी टू प्रीच. So we have to regularly find time to spend time with each other so that we continue fighting. युद्ध लड़ने के लिए शक्ति चाहिए, तो आध्यात्मिक युद्ध लड़ने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए. वो आध्यात्मिक शक्ति आती है वैष्णव के संग में. So why Shravanam is important? This whole of the body gives nourishment to the body.
this whole of the body gives nourishment to the soul. So if you want to nourish the body, you put food in this hole. And if you want to nourish the soul, then you have to put regularly food in this hole. Nityam Bhagavata Seva. You have to associate with the person Bhagavat and you have to associate with the book Bhagavat. Then the soul is strong, nourished. Okay. We have to find time. We won't survive if we don't find time. खाना खाने के लिए समय नहीं है, एग्जाम के दिन में सो जाएंगे वहाँ. Somebody else also had his hand up? Yes. He has. हरे कृष्णा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अमेजिंग क्लास. मुझे प्रश्न ये है, आपने बोला कि बड़े बड़े प्लान्स करना चाहिए जो कि कृष्ण के प्लान से मिलते रहे, बट ऐसे जानते कि जो भी हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करते हैं डिपेंड करता है गुरु की मर्जी पर. सो अपने प्लान को अगर हम बनाते हैं और देखते हैं कि वो अलाइन नहीं कर रहा है, देन व्हाट शुड वी डू? See, अपने प्लान करने हैं मतलब the whole purpose of the class was we should make plans in alignment with the plan of the Lord. So when I am saying make plans, it does not mean make plans like Shishupal. It means make plan like Arjun. आप बताइए क्या करना है, मैं करूँगा, है ना? That was Arjun's plan. So it means we should make plans as per Krishna's plans, which are revealed in our life through Guru Maharaj. So Guru अगर बोले हैं कि ये होना चाहिए, तो we should surrender, we should do it. We should make plans to serve Guru. We should make plans to serve Prabhupada, the mission of Prabhupada. तो प्रभुपाद जी ने कुछ इच्छाएं व्यक्त की है कि ऐसा होना चाहिए, मेरी किताबों का वितरण होना चाहिए, तो we should do that. We should not do thousands of other things. We may think it is anukul, it may be anukul, sometimes it may not be anukul. But if you follow Prabhupada's words, if you follow Guru's words, they are only anukul. They cannot be pratikul. So those who are leading their lives in surrender to Prabhupada, in surrender to Krishna, उनके हृदय में भगवान बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम, तो हमको बोलेंगे आप ऐसा करो, तो करेंगे हम. वही तो है, फिर अनुकूल करना है. ऑब्वियसली start with small at least. But if I tell you we should have small plans, then whole life you will have small plans. That's why I said you should have big plans. But start with small. Make some small plan to serve Guru, to serve Krishna, to serve Shri Chaitanya Mahaprabhu, and see and experience the sweetness कि आपने एक छोटा प्लान किया और वो पूरा हो गया. जब कोई संभावना नहीं थी, तो उससे आपको भी फेथ आएगा कि नहीं, कृपा मिलती है जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो उनकी प्रसन्नता के लिए है. हमने कई जन्म बिताए हमारी प्रसन्नता के लिए, आज हम ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे कि नहीं इनकी प्रसन्नता के लिए. सो ऑल ऑफ अस हैव टू एक्सपीरियंस दैट स्वीटनेस ऑफ मेकिंग प्लान्स एज पर कृष्णाज विल, दैट वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग. यस, उनको कुछ सवाल है, थोड़ा आगे आइए, आप भी प्लान बनाइए, आगे आइएगा. हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. हमारा नाम अजय राजपूत है और हम गवर्नमेंट जुगर साइंस कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड टेक्नीशियन थे, बट अभी हमने वहाँ से छोड़ दिया है ना. प्रभु जी, हमारा जो आपने बोला ना बड़ा गोल होना चाहिए, है ना, तो ऐसा ही कुछ हम बहुत दिनों से भटक रहे थे, तो हमें ठाकुर जी की कृपा हुई हम पे, यहीं आते रहते, बहुत दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे, है ना. तो ऐसा हमने सोचा क्या सेवा कर सकते हैं, सब लोग, आप भी सेवा कर रहे हो, हम भी सेवा कर रहे हैं, है ना. तो हमने सोचा है कि मतलब क्यों ना संसार, मतलब पूरे भारत के धार्मिक, संसार के पूरे धार्मिक स्थलों को गंदगी मुक्त कर दिया जाए, जो वहाँ पे जो घाट है उनको भी गंदगी मुक्त कर दिया जाए, है ना. ऐसे मतलब हमने अभी 4-5 जगह काम कर चुका है, हम अकेले ही कर चुके हैं, हम किसी संगठन से नहीं है और किसी से मतलब कोई हमारे सपोर्ट में भी नहीं है, हम स्वयं ही कर रहे हैं, मतलब, है ना, ठाकुर जी के सानिध्य में रह के ठाकुर जी करवा रहे हैं ऐसा, है ना. तो जो वृंदावन है अपना, जो मथुरा है, बरसाना है ना, अब वहाँ हम पर साल गए थे, मतलब पिछले साल गए थे, तो हमें वहाँ थोड़ी बहुत सेवा करने का अवसर मिला था. तो हमने जो प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम उसको गंदगी मुक्त किया था, बोतलें बहुत सारी डली थी वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया था, है ना. और जो अपने राधा जी, मतलब राधा वल्लभ वगैरह आसपास थोड़ा बहुत जितना हम कर सके, मतलब थोड़ा बहुत हमने वहाँ भी काम किया था, है ना. तो ऐसे अब वृंदावन है जो, मतलब तो वहाँ पे भगवान कृष्ण खेले हैं वहाँ पे, मतलब, है ना. तो उनकी जो जन्मभूमि है ना, जो रज है ना, तो कड़ में भगवान बसते हैं. आप बता रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, सवाल रख रहे हैं अपना, सवाल रखिए.
हाँ। आप वो पूरा बड़ा बैकग्राउंड बता रहे हैं, वो मालूम है हमको, वृंदावन में रज में भगवान के कण में है करके। आप मेन सवाल बताइए। तो उसको क्यों ना अपन मतलब गंदगी मुक्त कर दें पूरे वृंदावन को, तो वो कैसे हो सकता है? तो कल प्रभु जी हमको मिले थे और बोले कि हमको ऐसे मदद कीजिए, तो कल प्रभु जी का हमने फ़ोन नंबर भी लिया है। तो वृंदावन में एक फ्रेंड्स ऑफ वृंदावन करके ग्रुप है, उनका यही अभियान है। वृंदावन में जो मैल है, जो कचरा कूड़ा कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, जो वहाँ की जो म्यूनसिपाल्टी है उनके पास इतने पैसे नहीं है साफ़ सफाई करने के, या फिर उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो कल मैंने आपको बताया कि मैं आपको मदद करूँगा करके। तो फ्रेंड्स ऑफ वृंदावन करके ग्रुप है, ये अपने पैसे से वृंदावन को साफ़ करते हैं, तो उनसे आपको जोड़ूंगा, ठीक है? सर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा है। ज़रूर ज़रूर, आप उनसे जोड़ूंगा आपको, फिर आप मदद कीजिए। हमने काम किया हुआ है यहाँ, तो हमारे पास पोर्टफोलियो भी है, जो पहले कैसा था, अभी तक हमने धारा जी करके जिन्हें आश्रम वगैरह किया है, तो वहाँ तक अभी तक किसी ने ऐसा काम नहीं करवाया था, और वहाँ के 15 गाँव में हमारी परफेक्ट, ज़रूर आपको जोड़ते हैं, ठीक है? यस ब्रो। My question was कि just आपने बोला कि let's align our plan to plan of Guru and Krishna, Guru and Gauranga, and फिर आपने आंसर दिया कि how to know the plan of Guru and Gauranga, it's our internal voice से हमको पता चलेगा, जब आपने बुद्धि होगा। So how we can like refine कि हम लोग को कई बार होता है कि वो बहुत whisper होता है और हमको समझ नहीं आता कि it is our माइंड्स वॉइस और परमात्मा वॉइस। परमात्मा voice, confusion हो जाता है। तो how can we like clarify कि परमात्मा का voice है and mind का voice है? Yeah, if I can tell you this, one disciple came to Prabhupada one day and he said, Prabhupada कल सपने में आप आए और आपने मुझे एक सिगरेट दी पीने के लिए। So Prabhupada said, it was not me, it was Maya dressed as me. I will never give cigarette for smoking. So why I am telling this, कभी कभी हमको ऐसा लग सकता है कि मैं अभी थोड़ा शुद्ध हो गया हूँ और शायद भगवान मेरे से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, बट एनी टाइम यू गेट ए थॉट दैट सब लोग ये सेवा कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, मुझे जो सेवा करने को बोली है वो मैं कल करूँगा। यू शुड रिमेंबर इट इज़ योर माइंड विस्परिंग टू यू, एंड वेन एवर देयर इज़ ए थॉट फ्रॉम इनसाइड, सब लोग इस सेवा में शॉर्टकट कर रहे हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं करूँगा, मैं प्रामाणिकता से करूँगा। यू शुड अंडरस्टैंड दैट इज़ द परमात्मा स्पीकिंग। सो जब भी आपको लगे कि अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो गुरु साधु शास्त्र के खिलाफ है, तो आप समझना ये मेरा दूषित मन मुझे बोल रहा है, और आवाज़ ऐसे बोल रहा है हरे कृष्णा, शुरुआत में हरे कृष्णा बोल रहा है, बीच में जो है वो गलत बोल रहा है, बाद में वापस हरे कृष्णा बोल रहा है, और मुझे ऐसे फुसला रहा है कि ये तो मैं वैष्णव बोल रहा हूँ करके। नहीं, वैष्णव नहीं। सो फॉर ए गुड नंबर ऑफ ईयर्स प्रभु जी, गुड नंबर ऑफ ईयर्स, एटलीस्ट आई विल से 15 to 20 years, वी शुड जस्ट बी द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। अगर हमको बोला है उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, साफ करो तो साफ करो, ये दरवाज़ा खोलो तो दरवाज़ा खोलो। When we serve menially for 15 to 20 years, no plans of my own, but my plans are in accordance with Guru's plans, Prabhupada's plans, Sri Chaitanya Mahaprabhu's plans. उस purification से it is possible that Paramatma speaks in the heart to you directly. It is possible, it is not necessary. But as I mentioned, Prabhupada is serving Krishna purely and Guru is serving Prabhupada purely. So क्योंकि वो परंपरा में चल रहा है तो उनको अंदर भगवान बता रहे हैं, लेकिन हमको भगवान नहीं बता रहे हैं। So it is always safe to follow the orders of superiors. उसमें रिस्क नहीं है, because even if something goes wrong, then you can always mention it was not my plan, I was told to do this and I made my plan as a part of that plan. So for a good number of years, a very nice number of years, we should make our plans completely as a part of the authority's plan. हमारे अथॉरिटी का एक मैप रहता है, मेंटल मैप रहता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसमें जब हम हमारे प्लान को मिलाएंगे, तब हमारा जो अहंकार है, जो हमेशा सोचता है कि मैं तो बुद्धिमान हूँ, वो अहंकार थोड़ा कम होगा और शुद्ध अहंकार होगा। There is a false ego. Prabhupada always writes false. He doesn't try to destroy the ego. Prabhupada tries to destroy the false ego. So there is a real ego also. What is that real ego? Real ego कि मैं भगवान का दास हूँ,
मैं वैष्णव का दास हूँ, तो आज हमको जब कुछ भी अंदर से आवाज़ आती है, मोस्टली इट इज़ फॉल्स ईगो, क्योंकि अनेक अनेक जन्मों का उसके ऊपर इम्प्रेशन है. सो फॉर ए गुड नंबर ऑफ ईयर्स जस्ट डू वॉट यू आर टोल्ड टू डू. इट साउंड्स वेरी हार्श टू द ईयर्स. मतलब अभी क्या करूँ, रोटी खानी है तो अगर मेरा बगल में आदमी बोले चावल खाओ, वैष्णव ये सब चीज़ में नहीं जाते हैं. Vaishnavas don't dictate to us whether we should eat chapati or chawal. So we can eat what we want to eat. But Vaishnavas will tell you how you should do your service, what you should do and what you should not do. That we should strictly follow. Even though sometimes our mind says, अरे पुरानी बातें हैं, ऐसा नहीं होता है, ज़माना बदल गया है. Lot of things will come in the mind from the ego. But just by sticking to the orders of our authorities, we become clean, and that false ego gets purified to become real ego, and that real ego can actually hear the whisper of the Paramatma. परमात्मा है ना, एकदम सॉफ्ट बोलते हैं, प्रभु जी मत कीजिए ऐसा, झूठ मत बोलिए. ये धीमी आवाज़ होती है, तो धीमी आवाज़ को पकड़ने के लिए कान में वो सूक्ष्म शक्ति होनी चाहिए. वो सूक्ष्म शक्ति कब आती है? जब हम सालों साल तक अपने मिथ्या अहंकार को शुद्धिकरण करते हैं. और मिथ्या अहंकार को शुद्धिकरण करना है, whoever is your authority, just follow your authority. Don't try to be more smart than your authority. Your authority is your authority, my authority is my authority. I will try to surrender to my authority, you try to surrender to your authority. So जो principle क्या है, हमारे जो authority है वो जो हमको बोल रहे हैं वो करने से हमारा अहंकार शुद्ध हो जाता है. And then we get a favorable thing that they report to their authority that he is a person who does not have false ego. उसको जब जब मैंने कुछ करने को बोला वो करते हैं. That attracts mercy of the Lord. But every time if we start speculating, every time we say, but ऐसा क्यों करना है, ये तो आपकी राय है, मेरी राय तो ऐसा है. That fight of opinions actually destroys the whole atmosphere of Vaishnavism. मेरी राय तुम्हारी राय, एक ही राय होनी चाहिए ना. मेरी तुम्हारी क्या है, भगवान की राय एक ही राय है. वो राय हमारे जीवन में कैसे आती है, हमारे अथॉरिटीज़ के थ्रू आती है. वी शुड जस्ट फॉलो. देयर इज़ नो यूज ऑफ आर्ग्यूइंग एवरी स्मॉल थिंग, बिकॉज द होल पॉइंट इज माई आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम योर आइडियाज टिल वी आर बोथ नॉट ट्राइंग टू सर्व द लॉर्ड. व्हेन वी आर ट्राइंग टू सर्व द लॉर्ड, इन एसेंस इट इज वन एंड द सेम ओनली, राइट? सो we should always try to please our authorities. In trying to please our authorities, one very beautiful thing will happen, which usually does not happen. Our ego will get purified. And that pure ego is very important to listen to the whispers of the Paramatma. Yeah? So one more question. You said about association. So how can one decide, not decide, how can one select his friend according to his psychophysical nature? Because there are many good people, but also according to your psychophysical nature, if अगर आप उन तरीके के devotees अलाइन होंगे, then you will relish to another level. Yes. तो you only have given your answer. एक सजातीय वैष्णव होते हैं. सजातीय मतलब जैसे मैं हंसमुख हूँ बहुत, तो अभी ये सीरियस डिवोटी है तो मेरा थोड़ा बात करूँगा लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगी चर्चा, है. सो ऑल ऑफ अस कैन डिसाइड मेरा क्या मूड है. कोई एडवेंचरस होते हैं मालूम है, नहीं उनको कुछ तो नित्यानंद प्रभु की कृपा रहती है, राइट? सो अभी बेचारा एक दूसरा डिवोटी है जो एकदम सिंपल सा डिवोटी है, उसका नहीं जमेगा वो, राइट? ही इज ऑलवेज टॉकिंग, अरे चलो कुछ करते हैं, और ये बोलता है हाँ चलो प्रसाद लेते हैं. वो बोले कुछ करते हैं मतलब चलो बाहर चलते हैं, कुछ प्रचार करते हैं, कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते, कुछ करते हैं, और ये बोलता है कि प्रसाद खाओ खुश रहो, इतना क्यों रिस्क लेना. बोथ आर राइट बिकॉज बोथ आर सर्विंग कृष्ण, राइट? सो जो एडवेंचरस है ही शुड बॉन्ड विद अनदर एडवेंचरस डिवोटी, और जो अपना सिंपल सा डिवोटी है, अपना सिंपल माला करेगी खुश है, वो अनदर डिवोटी से. तो क्या होता है उसमें बहुत चर्चा होती है, उसमें रस आता है, और एज यू राइटली सेड देन दैट फ्रेंडशिप एक्चुअली गोज अहेड and you get spiritual nourishment from that. So we should search for सजातीय वैष्णव, ठीक? Adventure should search for adventure. Preacher should search for preachers. जो कीर्तनीय है वो कीर्तनीय के साथ बात करेगा. वो preacher हमेशा he is reading all these books, और जो हमारा सिंगर है वो बोलता है अरे आज ना क्या एक नया ट्यून सुना मैंने, सुनाओ क्या तुझे? तो बोलता है आज मैंने एक नया श्लोक पढ़ा, सुनाओ क्या तुझे? मैं ट्यून सुना रहा हूँ बाबा, मतलब मैं भगवान का श्लोक सुना रहा हूँ, बहुत बढ़िया श्लोक है, नहीं जमेगा, राइट? बट ये बोलते हैं नया श्लोक, अरे सुना ट्यून सुना तेरी. तो बोले
Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare. और दूसरा बोलेगा अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्यून तो मैंने भी कभी नहीं गाया. तो एक कॉम्प्लिकेटेड ट्यून का एपिटोमी है ये ट्यून. सुनना है वापस. Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare. तो किसको इंटरेस्ट है, जो खुद सिंगर है वो दूसरा प्रभु बोले क्या है, क्या कर रहे हो. मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्यून में वो सामने जो क्राउड है वो तो गा ही नहीं पाएगा. तो हमने प्रभु जी को बुलाया सबको कीर्तन में नचाने के लिए, और प्रभु जी ने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ट्यून गाया. राइट. सो सिंगर शुड डिस्कस विद सिंगर, प्रीचर शुड डिस्कस विद प्रीचर्स. प्रसादम बनाने वाले जो लोग हैं उन्होंने दूसरे प्रसादम बनाने, अरे आज ना मैंने मैसूर पाक बनाया, ऐसा कितना समय लगा, 2.5 घंटा. बाप रे. मैं उस दिन जिलेबी बनाया तो 2 घंटे में बन गई. दैट्स व्हाट डिस्कशन. जिसको चैतन्य चरितामृत अच्छा लगता है, ये शुड डिस्कस विद चैतन्य चरितामृत. रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने क्या, अरे जीव गोस्वामी ने क्या किया, मजा आता है ना. वो ये बेचारा ध्रुव महाराज की कथा बोल रहा है, ये बेचारा रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा बोल रहा है. इट्स डिफिकल्ट, राइट. So basically, yes, Sajatiya Vaishnava is very important, and that keeps us nourished and that keeps us going ahead. Okay. जय श्रील प्रभुपाद की जय, कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे. Hare Krishna. So such a nectarian class. I was thinking, Prabhuji just बोल रहे थे, I was reflecting कि although we have heard these pastimes several times, जगह मधाई का pastime, what other pastimes जो प्रभु जी ने बताया, सुरुचि, ध्रुव महाराज. So I was thinking, but although हमने ये pastimes बहुत बार सुने हैं, लेकिन प्रभु जी, excuse me. So लेकिन वो प्रभु जी जैसा बोल रहे थे, इट वॉज वेरी नेक्टेरियन. मतलब ऐसा लग रहा था कि पहली बार सुन रहे, और ऐसा लग रहा था कि मतलब वी आर फीलिंग द इमोशंस टू सम डिग्री ऑफ व्हाट द कैरेक्टर्स यूज्ड टू एक्सपीरियंस. इट वाज सो लाइव, है ना. सो आई वाज थिंकिंग दैट दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल. ऐसा कैसा पॉसिबल हुआ व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट रसा in your heart, when you are if you are experiencing that rasa, then जब आप बोलोगे उसमें भी रस आएगा, right? जब आपके अंदर रस नहीं है तो आप बोलोगे तो उसमें रस नहीं आएगा, सूखा सूखा रहेगा. तो अंदर रस भरा है तो ही जब बोलोगे तो उसमें भी रस आएगा. पर वो अंदर रस कैसे भरेगा? हाँ, और ऐसा नहीं कि आपका पुराना स्टॉक है ना. लाइक ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें होते हैं ना, वो ताज़े ताज़े बनते हैं. हाँ, तो कभी कभी मैं क्लास देता हूँ तो पुराना स्टॉक निकालना पड़ता है. लेकिन प्रभु जी जैसे लोग, व्हाट आई सी, दे आर ऑलवेज फ्रेशली फीलिंग दैट. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर रेगुलर कल्चर ऑफ हियरिंग, चैंटिंग एंड रीडिंग प्रभुपाद बुक्स. जो रेगुलरली प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ते हैं डेली विदाउट फेल, और उसमें एब्जॉर्ब होते हैं, और हरिनाम में एब्जॉर्ब होते हैं, नॉट जस्ट रिचुअलिस्टिकली कि हम अपने 16 माला कंप्लीट कर लिए somehow or other, बल्कि उसमें एब्जॉर्ब होकर attentively, and when you chant with your heart, when you read also with your heart on a regular basis, you know, and hear from Vaishnavas, तो वो जो रस है ना, वो आपका हार्ट हमेशा उससे भरा रहता है. एंड जब भी आप कुछ भी किसी से भी बात करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बिना प्रयास किए अपने आप निकलता है. सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेज स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. कोई व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है उनका स्पीच. जब वो बोलते हैं तो वो उनका अंदर क्या है वो समझ में आता है, राइट. सो या, सो आई मीन वी गेन लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम योर क्लास, एंड
हमको मतलब वी आर इंस्पायर्ड नॉट ओनली बाय द कंटेंट ऑफ योर स्पीच बट ऑल्सो the emotions and the feelings and the rasa or the nectar that you have shared, and that inspired us to also taste that kind of nectar in our own lives. Bhakti Visram Madhav Maharaj वो कहते थे कि get your own nectar, right? You should get your own nectar. मतलब आप किसी और का नेक्टर लो, लेकिन आपको अपना नेक्टर भी लेना चाहिए, बनाना चाहिए. So yes, so that's the thing which we learn from devotees, from Chowpatty and other such temples, especially Chowpatty temple में हम देखते हैं they have a culture of hearing, they have a culture of reading and hearing. इसलिए वो लेक्चर में क्वालिटी कैसे आती है, ऐसा नहीं कि मैं सोचता था कि कुछ तो स्पेशल है, क्या है स्पेशल भैया, हम क्यों नहीं ऐसा बोल पाते हैं प्रभु जी जैसा. तो लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है कुछ भी स्पेशल इन द सेंस, ऐसा नहीं कि वो कोई अजीब व गरीब कुछ स्पेशल डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं जो हमारे पास नहीं है, है ना. वो भी वही प्रभुपाद जी के बुक्स ही पढ़ते हैं राइट, वही भागवतम पढ़ते हैं, वही चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, बट उसमें वो डीपली एब्जॉर्व होते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं और उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, एब्जॉर्व होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर से सुनते हैं. हाँ, वो कल्चर है. हाँ, सो we have the same content, but they have more eagerness for that content, they have more taste for that content, right, and they are giving it more importance than we do. So that is what we need to take. So I just wanted to express my gratitude and appreciation for Prabhuji कि उनके स्पीच से, उनके 2 दिन से हम बहुत लाभान्वित हुए, and I hope we'll get more and more of such association, and let us thank His Grace Nanda Dulal Prabhu by 3 times loudly chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna. His Grace Nanda Dulal Prabhu ki jai. So so as this Mahaman Prabhuji is expecting you to take sadhana, and actually our plan was to take in the